بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں نہ نیند ہے نہ موت، جہاں نہ غم ہے اور نہ کوئی پریشانی، جہاں بڑھاپا نہیں بلکہ ہمیشہ کی جوانی۔ یہ کوئی خیالی دنیا نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا وعدہ خود رب کائنات نے کیا۔ یہ ہے جنت الفردوس، جنتوں کا تاج، جنتوں کا اعلیٰ ترین مقام، وہ انعام جو صرف ان بندوں کے لیے جو رب کی رضا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے روحانی سفر پر جہاں آپ جانیں گے کہ جنت الفردوس کیا ہے، جنت الفردوس کیسی ہوگی اور اس میں کون سے خوش نصیب داخل ہوں گے، قرآن و حدیث میں اس کا کیا مقام ہے، جنت الفردوس کے جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم اللہ کے فضل سے جنت الفردوس میں داخل ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ایمان سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے عشق الہی کے آنسو بہنے لگیں اور آپ اللہ کے دیدار کی حقیقی طلب محسوس کریں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ناظرین، جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کا نام سنتے ہی فرشتے بھی چک جاتے ہیں۔ وہ عرش الہی کے نیچے واقع ہے، جہاں سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں، جہاں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے قریب ہوں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے زیادہ اور بار بار نصیب ہوگا۔ فردوس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سب سے بلند و بالا باغ کے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا اور ہر بار نیکوکاروں کامل مومنوں کے انعام کے طور پر ذکر ہوا۔ سورہ کہف میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، جزاءہم عند ربہم جنت الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یعنی ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور اس کے اوپر صرف عرش الہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فردوس جنت کا درمیانی اور سب سے اونچا مقام ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یہاں وہ خوش نصیب رہیں گے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنا مال، اپنی پسند اور نفسانی خواہشات سب کچھ قربان کر دیا۔ جنت الفردوس کے محل موتی، سرخ چاندی اور یاقوت اور زمرد کے بنے ہوں گے، وہاں کی مٹی کستوری کی ہوگی اور زمین ہموار، نرم اور خوشبودار ہوگی، وہاں کے درختوں کے سائے میلوں لمبے ہوں گے اور ان کے نیچے جنتی آرام کریں گے۔ جنت الفردوس کے دروازے بہت وسیع اور بہت خوبصورت ہوں گے اور ہر جنتی کے لیے الگ الگ محل ہوگا۔ ان کے خدام، ان کی حوریں اور ان کے روحانی ساتھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ وہاں کے خیمے یاقوت موتیوں کے بنے ہوں گے اور وہاں نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، بلکہ عرش الہی کا نور ہوگا جو ہر وقت روشنی عطا کرے گا۔ جنت الفردوس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے، وہاں کی فضا میں قرآن مجید کی تلاوت، فرشتوں کی تسبیح اور جنتیوں کی ہنسی خوشی کے نغمے گونجیں گے۔ جنت الفردوس میں داخل ہونے والے خوش نصیب لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی انہیں نصیب ہوگی۔ وہ ایسے باغات میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے اور جن کا حسن انسانی تصور سے کہیں زیادہ شاندار ہوگا۔ حضرت لئیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے۔ وہ ایسی جنت ہے جہاں بہت سارے درخت ہیں، اس کی زمین درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں سے چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ ہے اور جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے ہی جاری ہوتی ہیں۔ اس درجے کے جنتیوں کو اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ جب بھی چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔
जन्नतुल फिरदौस में 4 नहरें सीहान, जीहान, फरात और नील जारी होती हैं। निचले दर्जे के जन्नतियों को ऊपर वाले जन्नतियों के महल्लात यूं दिखाई देंगे जैसे दूर कोई चमकता हुआ सितारा हो। असहाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले तमाम नेकोकारों को चांदी के 2 बागात मिलेंगे और साबिकून यानी नेकी के कामों में पहल करने वालों को सोने के 2 बागात मिलेंगे। और फिर जन्नतुल फिरदौस के तो क्या ही कहने हैं। इस जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और इसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज़ ज़ुमरुद की है। इसकी मट्टी मुश्क की है और इसके संगरेज़े लूलू गोहर के हैं। इसकी घास ज़ाफ़रान की है और यहाँ के महल्लात में हर वक्त ऊद की अंगीठियाँ जलती रहेंगी जिसकी खुशबू से उनके महल्लात मुअत्तर रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस में एक एक मोती का खैमा होगा जो खूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा और उनकी बुलंदी 60 मील होगी। वहाँ तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। वहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे। खास खजूरों के दरख्तों के तने सब ज़मुर्रद के होंगे और उसकी टहनियाँ सोने की होंगी और उससे ही जन्नतियों के लिए लिबास तैयार किए जाएंगे। जन्नत में खजूर का एक दाना एक मटके के बराबर होगा और ये खजूर दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठी और मक्खन से ज़्यादा मुलायम होगी। जन्नतियों के पसंद के तमाम तर फल उनकी पहुँच में होंगे जिन्हें वो खड़े बैठे चलते फिरते हत्ता के लेटे हुए भी जब चाहेंगे ले सकेंगे। जन्नत के फलों में केला, अंगूर, अनार, जैतून, इंजीर, बेर, खजूर सब जन्नत के फलों में शामिल हैं और इसके अलावा और बहुत से ऐसे फल हैं जो दुनिया में नहीं पाए जाते। जन्नत के फलों में ना तो गुठली होगी और ना ही छिलका होगा और वो जायके में बहुत ही मीठे और लजीज होंगे। जन्नती जब भी किसी दरख्त से कोई फल तोड़ेंगे तो फौरन ही वहाँ एक नया फल लग जाएगा। जन्नत में पानी, दूध, शहद और शराबे तहूर की नहरें होंगी। जन्नत की एक नहर नहरे हयात है जिसका पानी जहन्नम से निकलने वाले लोगों पर डाला जाएगा जिससे वो पुरनूर और जवान खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत में जंजबील, सलसबील, काफूर और तस्नीम के चश्मे जारी हैं। जन्नतुल फिरदौस में जाने वालों को खालिस तस्नीम का मशरूब पेश किया जाएगा जबकि दूसरे दर्जे के जन्नतियों को तस्नीम में उम्दा किस्म की शराब के साथ आमोजिश करके पेश की जाएगी। जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले जन्नती बड़े ही मज़े में होंगे और वो ऊंची मसनदों पर बैठेंगे। उनके चेहरे पुरनूर और तरोताज़ा होंगे और वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे और उनकी मेहमान नवाजी के लिए परिंदों का गोश्त और तरह तरह के लजीज खाने पेश किए जाएंगे। जन्नत में हर इंसान को 100 आदमियों के खाने पीने की ताकत दी जाएगी। खूबसूरत चेहरों वाले खादिम सोने के बड़े बड़े थाल लेकर इसमें तरह तरह के मशरूबात लेकर जन्नतियों की खिदमत करेंगे। जो भी ख्वाहिश या इरादा करेंगे वो फौरन ही पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। वहाँ कोई लग़्व या बेहुदा बात न होगी। हर तरफ नेमतें, खूबसूरत मनाजिर, अमन व सुकून और राहत और खुशियाँ होंगी। उनके चेहरे चौदवी के चांद की तरह रोशन और चमकदार होंगे जबकि दूसरे दर्जे के ग्रोह के चेहरे सितारों की मानिद रोशन होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने उनके बारे में सुना और न किसी के दिल ने उसका तसव्वुर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अगर मौत होती तो जन्नती लोग जन्नत की नेमतों को देखकर खुशी से मर जाते और अगर जहन्नम में मौत होती तो जहन्नम की सख्ती को देखकर गम से मर जाते। जन्नत में इन तमाम नेमतों से बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों को अल्लाह के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बल्कि जब भी वो चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उस रोज़ कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। ये वो लम्हा होगा जब जन्नतुल फिरदौस के बासी अपने महलों, नेमतों, खुद्दाम, हत्ता के हूरों से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार में राहत महसूस करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो किसी नेमत को बड़ा नहीं समझेंगे सवाए अल्लाह के दीदार के। अल्लाह का दीदार उन्हें बार बार नसीब होगा। ये दीदार कैसा होगा, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो। और एक और रवायत में बयान हुआ, अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा, या तुम मुझसे राजी हो? जन्नती कहेंगे, क्यों नहीं है हमारे परवरदिगार, तूने हमें जन्नत अता नहीं की।
तब अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे राज़ी हो गया, मैं तुम्हें अपनी रज़ा देता हूँ और अब कभी तुमसे नाराज़ न होऊंगा। और यही वो लम्हा होगा जब दिल, आँखें, रूह सब एक साथ झुक जाएंगी और रब का दीदार जन्नतुल फिरदौस में मुकम्मल सुकून अता करेगा। नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि वो कौन से खुश नसीब होंगे जो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाते हैं, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों और लोंडियों पर इसलिए कि उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं। जो शख्स इसके अलावा तलबकार हो वही हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले हैं, अपनी अमानतों और वादों का लिहाज करने वाले हैं, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, और वही बारिश हैं जो जन्नतुल फिरदौस के बारिश होंगे और वो इसमें हमेशा रहने वाले होंगे। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के लिए कौन से ऐसे अमाल करना ज़रूरी हैं जिनसे हम अल्लाह के फजल से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के काबिल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कामिल ईमान का होना ज़रूरी है, यानी इंसान अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों और अल्लाह के फरिश्तों पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो और ईमान की हालत में ही उसकी वफ़ात हुई हो। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करना, खुशू वज़ू के साथ नमाज अदा की जाए और नमाज में अल्लाह की तरफ ध्यान रखा जाए। तीसरी चीज़ शिर्क से बचना और उन तमाम चीज़ों से बचना जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। चौथी चीज़ ज़कात अदा करना। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल है और कुरान मजीद में नमाज अदा करने के साथ साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म फरमाया। पाँचवीं चीज़ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, यानी इंसान अल्लाह और उसके रसूल के कायम करदा हदूद के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करे और तमाम नाजायज़ और हराम कामों से बचे और कोई भी ऐसा काम ना करे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का बाइस बने। छठी चीज़ अमानतों का पास रखना, यानी अमानतों में खयानत ना की जाए, जैसे अमानत रखवाई जाए उसे वैसे ही वापस लौटाई जाए। सातवीं चीज़ अपने वादों का लिहाज रखना, यानी अपने कौलो फेल में तजाद से बचना, जो वादा किया जाए उसे हर तौर पूरा किया जाए, वादे की खिलाफ वर्जी ना की जाए। बेशक अल्लाह पाक वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाता और उस शख्स को भी पसंद नहीं फरमाता जो वादा खिलाफी करे। जन्नती लोग जन्नत की नेमतों को पाने के बाद अगर अफसोस करेंगे तो उस लम्हे पर जो उन्होंने अपने रब की याद से गफलत में गुजारे होंगे। नाजरीन मोहतरम, दुनिया की कामयाबी वक्ती और आर्जी है। हम दुनियावी कामयाबी के लिए इतनी मेहनत करते हैं जबकि हमारी असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी देना होगी, नफ्स पर काबू रखना होगा, नमाजों को वक्त पर अदा करना होगा, कुरान मजीद से ताल्लुक़ मजबूत करना होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करना होगी जैसे मोहब्बत वो अपने बंदों से करता है। आखिर में दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अहलिल फिरदौसिल आला वजअलनी मिम्मन यंज़ुर इला वजहिल करीम बिला हिसाब। ए अल्लाह, मुझे आला जन्नतुल फिरदौस का मकीन बना दे और बगैर हिसाब के मुझे अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।